अभी की लास्ट क्लास लेट्स सुपरपोजिशन ऑफ ऐसे ना Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone please let me know in chat if you all can hear me? नहीं आता। Okay everyone, so I do not exactly remember. Thank you everyone for your kind confirmation. And I exactly do not remember where were we in the previous class. But as much as I remember, हमने superposition of waves start कर लिया था, if I'm not wrong. ऐसे ही है? अच्छा. Or we were done with our discussion on diffraction, constructive interference and destructive interference. ये पढ़ लिया था हमने? ये पढ़ा था हमने? किस कंडीशन पे कंस्ट्रक्टिव होगा, किस कंडीशन पे डिस्ट्रक्टिव होगा, ये हमने डिस्कस कर लिया था. Okay. क्या हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था? कर लिया था ये वाला? We did this. Okay. इससे आगे तो नहीं गए होंगे. ये आखिरी था. So let's take a quick recap of what we have studied in the previous classes. We talked about the idea that two waves simply can meet at any point, and when they meet at any point, they follow a principle known as the principle of superposition. That is, at the point where the two waves meet, the value of net displacement of the particles, or simply the value of net displacement, is going to be equal to the algebraic sum of the individual displacement of the two waves at that point. Then we try to understand with different basic examples कि भाई किस तरह से दो pulse मिलती हैं, when they meet at a point, इस point पर तो एकदम से उनका displacement add up हो गया and then अपने अपने रास्ते निकल गए वो. Now we talked about अगर for example किसी एक particular medium के through एक wave जा रही है और बिल्कुल वहीं से दूसरी wave भी जा रही है, तो at all points the particles are going to get confused कि भाई वो किस wave को follow करें, right? So what they're going to do is at all points they're going to ask the displacement of both the waves, and they are going to keep their displacement as the sum of the individual displacement of the two waves. So we saw how the sum of or addition of two waves may end up with another new shape wave. So ये हमने देखा. Now we recall the concept of wavefront, where we try to understand what a wavefront is. It is simply, a line which is made by joining all the crust. But we make sure that when we draw those lines, we draw those lines perpendicular to the direction of energy transfer.
Then we talked about, in fact, we recalled our concept of diffraction, that it is simply spreading of a wave when it passes through an opening or a, or a slit. And then we tried to recall the idea that diffraction is best observed when the wavelength of the wave is comparable or roughly equal to the size of the opening of the slit. Okay, अगर वो बहुत बड़ा difference होता है ना, like आपकी wavelength में और आपके opening size of the opening of the slit में, तो you may get diffraction, you may observe diffraction, but that would be very less diffraction. If you want to observe maximum diffraction, so you're gonna keep the wavelength and the size of the opening of the wave nearly or roughly equal to each other. Then we talked about how to figure out phase difference between two waves. And then we talked about the idea that when two waves meet at a point such that they are both in phase with each other, and दो ऐसी waves जिनका wavelength same हो, जिनकी frequency same हो, जब ऐसी दो waves एक point पर मिलती हैं, तो we say कि भाई like और दोनों in phase हो. In phase का मतलब ये कि if you look at these two waves, one is red and the other is green, दोनों साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहे हैं, साथ साथ कम हो रहे हैं, so like कोई किसी से आगे नहीं निकला हुआ, कोई किसी से पीछे नहीं रह गया. So in such a situation, when two waves are in phase with each other, they interfere. The superposition is called constructive interference. They end up making another new wave with an amplitude equal to the sum of the amplitude of the two individual waves. This is also an example of constructive interference. This is an example of destructive interference. Destructive में होता था कि the two waves meet such that they are exactly out of phase, which is that they have a phase difference of 180 degrees. ये हमने recall किया, और फिर we talked about the idea of a path difference, जिसमें हमने कहा कि भाई दो waves इस तरह से मिले कि आपकी आवाज नहीं आ रही है. Yes, it stopped for everybody.
Hello everyone. Can you all hear me? Yes. All right, G. So my sincere apologies for the on हो जाएगा। अच्छा लो, so after discussing like when do we expect constructive interference and when do we expect destructive interference, we talked about the most important part of this superposition rule. That is कि हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर दो वेव्स किसी एक पॉइंट पर मिल रहे हैं तो देयर इंटरफेरेंस इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, उसको लेकर मैंने आपको एक पूरी एग्जांपल समझाई थी पिछली क्लास में, और मैंने आपको ये कंक्लूजन दिया था कि लाइक अगर दो वेव्स किसी एक पॉइंट पर इस तरह मिलते हैं लाइक कि उनका पाथ डिफरेंस इज 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तो they will meet such that कि वो इन फेज होंगे हमेशा, and their interference is going to be a constructive interference. And if two waves meet at a point such that the path difference is 0.5, 1.5, 2.5 lambda, तो उनका जो interference होगा वो हमेशा destructive interference होगा, यानी वो मिलेंगे 180 degree out of phase, so they are gonna get zero displacement at all points. तो मैंने कहा था इस कंडीशन के एप्लीकेबल होने की भी एक कंडीशन है, वो ये है कि आपके जो दो सोर्स ऑफ वेव है ना, they should be oscillating in phase with each other, you know. और मैंने कल ही ये बात कही थी कि देखिए इस टॉपिक में मुश्किल कुछ भी नहीं है, बट एक चीज मुश्किल है वो कॉन्सेप्ट समझना नहीं, कॉन्सेप्ट को रिटेन रखना और डिफरेंसेस को ध्यान में रखना, बिकॉज यू नो विद अ वेरी माइन्यूट चेंज इन द क्वेश्चन द एंटायर थिंग विल चेंज ऑल टुगेदर. तो दिस वाज द लास्ट थिंग दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, ऐसा ही, और हमने एक छोटी सी एग्जांपल आई थिंक ये वाली कर ली थी जिसमें हमारे पास दो वेव्स गिवन थी और उनका डिफरेंस, उनका डिस्टेंस हमें गिवन था कि जब वो मिल रहे थे तो हाउ मच डिस्टेंस दे हैव ट्रैवल्ड, तो एक ने 23, एक ने 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया था. सो व्हाट वी डिड वाज वी फाउंड द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टू वेव्स. तो एक ने 23, एक ने 18 किया था, तो वी फाउंड द डिफरेंस व्हिच टर्न्ड आउट टू बी 5 सेंटीमीटर्स. बट डिफरेंस को सेंटीमीटर्स में नहीं, डिफरेंस को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा देखना. In the question it was given कि भाई wavelength is 2 centimeter, इसका मतलब in terms of lambda that is 2.5 lambda, you know, 5 centimeters. If one wavelength is 2 lambda, then 5 centimeter is going to be 2.5 lambda, which is 5 divided by 2. And we knew that for 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 lambda we get a destructive interference. So we concluded कि भाई यहाँ पे destructive interference है. This is what we did in the previous class. अब थोड़ा सा ना हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझने की जरूरत है. एक तो पाथ डिफरेंस हमने कल ही समझ लिया था, which is simply the difference between the distance traveled by two waves. ठीक है, एक क्वेश्चन है जो बहुत फ्रीक्वेंट एग्जाम में पूछा जाता है, which is state what is meant by coherent waves. Okay, so if you start doing past papers of superposition, you're gonna find this very frequent. ना हर क्वेश्चन में जगह जगह एक मार्क का पूछा जाता है, what is a coherent wave, what is meant by a coherent wave, and there is only one answer. There is only one answer that the examiner accepts in explanation of what are coherent waves. That are the three magical words: constant, phase, difference. Okay, बोल्ड मार्क होते हैं. बोल्ड मार्क का मतलब ये होता है कि भाई इसके अलावा कुछ भी होगा ना हम नहीं देंगे मार्क्स,
you know, like this is what we want. और इतना multiple times पूछने के बाद तो और clear हो चुका है ना कि like this is what you have to write, constant phase difference. So if there are two waves that have the constant phase difference, means these two waves are coherent. Okay. अच्छा, अभी मैंने चैट पे देखा किसी ने बोला सेम वेवलेंथ सेम एम्पलीट्यूड. देखें, एक्चुअली दो वेव्स कोहेरेंट होती ही उस वक्त है जब उनका वेवलेंथ सेम हो, उनका फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड सेम हो, उनकी स्पीड सेम हो. ठीक है. हाँ, एम्पलीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं. ठीक है. लाइक दो वेव्स बिल्कुल कोहेरेंट हो सकते हैं अगर एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा एक का एम्पलीट्यूड कम हो. एक्चुअली दो वेव कोहेरेंट उस वक्त होती है जब उनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, स्पीड सब सेम हो. बट जब ये तीनों चीजें सेम होती है ना, तो ऑटोमेटिकली उन दो वेव्स का जो फेज डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट होता है. इसलिए वी प्रीफर टू राइट कांस्टेंट फेज डिफरेंस. वैसे एज फार एज द कांसेप्ट इज कंसर्न्ड, यस, ऑब्वियसली टू वेव्स विल बी कोहेरेंट ओनली व्हेन दे हैव द सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्वियसली सेम स्पीड एंड टाइम पीरियड. बट this is not what you're supposed to write in your answer script. Okay, if they ask you okay bhai what is meant by two waves that are like that are coherent, तो आप सिंपली बस ये तीन वर्ड्स लिखोगे, कांस्टेंट फेज डिफरेंस. और आज हम समझेंगे कि आखिर इस कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है. लाइक एग्जाम में तो आप लिख के आ जाओगे, बट इसका मतलब क्या होता है, उसके लिए वी नीड टू लुक इनटू एन एग्जाम्पल. मैंने आपके सामने दो वेव्स बनाई, आप सब देख सकते हैं. एक रेड कलर से बनाई, एक पर्पल कलर से बनाई. ओके, तो मुझे बता सकता है इन दो वेव्स का फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री. ओके, लाइक जो पर्पल वाली वेव है वो आप कह सकते हैं रेड वाली से 90 डिग्री आगे निकली. पिछली क्लास में हमने बात किया था फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं. अच्छा, अब अगर रेड और पर्पल में फेज डिफरेंस 90 है ना, तो वो थ्रू आउट 90 डिग्री. आप शुरू में देख लो, एंड में देख लो, कहीं से भी देख लो, आप देखोगे भाई इन दोनों वेव्स का जो फेज डिफरेंस है ना वो कंटिन्यूअसली 90 डिग्री है. क्यों? क्योंकि इन दोनों का वेवलेंथ सेम है. लाइक अगर आप इन दो वेव्स को गौर से देखें, दे बोथ हैव द सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड, एवरीथिंग इज सेम, विद द ओनली डिफरेंस कि भाई एक वेव थोड़ी आगे निकल गई, एक वेव थोड़ी पीछे रह गई. सो दीस टू वेव हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस. सिमिलरली दिस इज 360, दिस इज 180 डिग्री. तो x और y का जो फेज डिफरेंस है ना वो 90 डिग्री. मैं एक और वेव बना दूं उस तरह से, ग्रीन कलर की. ओके, तो रेड और ग्रीन वाले का फेज डिफरेंस 180 डिग्री है. हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया. अच्छा, मैं समझा देता हूं. बहुत सिंपल होता है. दोबारा समझा देता हूं. फेज डिफरेंस निकालने का तरीका ये होता है कि पहले ना आप एक पूरी वेव बना लो. ओके, आइडियली जीरो से स्टार्ट करो और इसको कंप्लीट कर लो. ठीक है. अब आपको इस वेव का, जिस वेव के साथ फेज डिफरेंस निकालना है ना, आप वो वाली वेव भी पूरी बनाओ बिल्कुल ऐसे कि आप जीरो से स्टार्ट करो, अपर एक्सट्रीम पे जाओ, फिर भी आप कोई दूसरा पैटर्न भी अडॉप्ट कर लेते हो, बट लेट्स कीप इट सिंपल. दोनों का हमने सेम पैटर्न बना लिया. अब नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वेव. यू नो, एक वेव लेट्स से यहां से स्टार्ट हो रही है, एक वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, ऐसा है. तो अब ये डिफरेंस जितना होगा ना इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, वो इनका फेज डिफरेंस होगा. अब वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले आपने देखा यार, एक पूरी वेव जो होती है ना वो कितनी होती है? 360. ओके, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 180. उसका आधा कितना हो जाएगा? 90. इसका मतलब पर्पल वाली और रेड वाली वेव का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? वो 90 डिग्री. आप कहीं से भी देख लो, पर दूसरे का भी फिर वही वाला प्रोफाइल. समझ लो आप मेरी बात. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो ना मैं रेड का ये वाला प्रोफाइल बनाना चाह रही हूँ, पीक से पीक, ये भी एक कंप्लीट वेव बना दिया आपने. ठीक, तो फिर आप पर्पल वाले का भी यही बनाओ ना, आप देखना वही 90 डिग्री आ रहा होगा. समझ लो. और यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि रेड और पर्पल का जो फेज डिफरेंस है ना भाई, वो 90 डिग्री फिक्स हुआ है. आप कहीं से भी डालोगे ना आपको 90 डिग्री मिलेगा थ्रू आउट. सिमिलरली मैंने आपके आगे ग्रीन वाली वेव बनाई है, लेट्स से वो वेव 180 डिग्री आगे हुई है पूरी रेड वाले से. ठीक है. सो द फेज डिफरेंस, अब ये सारी वेवलेंथ ना, ये सारी वेव बिल्कुल एक जैसी है, विद द ओनली डिफरेंस कि कोई आगे निकल गया, कोई पीछे निकल गया. तो इन सारी वेव्स का जो फेज डिफरेंस है ना वो फिक्स है. अगर x और y का फेज डिफरेंस 90 है तो थ्रू आउट 90 है. x और z का 180 है तो थ्रू आउट 180 है. अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और बीच में कोई वेव बना दूं p जो 45 डिग्री के डिफरेंस से बना दूं, तो अगर उसका फेज डिफरेंस 45 है तो वो 45 ही है. तो ऊपर जितनी भी मैंने वेव्स बनाई है ना वो सारी कोहेरेंट वेव्स हैं. दे आर ऑल कोहेरेंट, क्योंकि इन सबका एक दूसरे के साथ एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है. कोई किसी से 45 डिग्री आगे, तो कोई किसी से 90 डिग्री आगे, तो कोई किसी से 180 डिग्री आगे, तो उससे भी कम हो सकता है. पास्ट पेपर में एक जगह पूछा गया, उन्होंने ना लेट्स से 30 डिग्री का फेज डिफरेंस. अब वो ऐसे निकालते हो, बड़ा सिंपल होता है. आप पहले ना
एक पूरी वेव बनाते हो, सही है, और आप ना उसके बॉक्सेस काउंट करते हो। जैसे आपके केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉक्सेस है ना। तो आप क्या करोगे, आप लिख दोगे कि भाई इस केस में मेरे लिए फॉर एग्जाम्पल फॉर 12 बॉक्सेस फेज डिफरेंस इज 360। अब लेट्स आपने आपके आगे कोई और वेव बनेगी जो आपसे लेट्स से 4 बॉक्सेस आ गए या लेट्स से 5 बॉक्सेस आ गए, तो आप लिखोगे 5 का मतलब x हो जाएगा। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो प्रिसाइजली कि जो दूसरी वेव है ना वो कितना आगे या कितना पीछे। उसके मैं जब पास्ट पेपर्स कराऊंगा ना तो आई विल बी डिस्कसिंग दैट क्वेश्चन एज वेल। सही है। अब ये एग्जांपल है कांस्टेंट फेज डिफरेंस की। आपको कांस्टेंट फेज डिफरेंस का एक्चुअल मतलब उस वक्त समझ में आएगा जब मैं आपको दो ऐसी वेव्स दिखाऊं जो जिनके बीच कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है। जैसे मैं आपके आगे ये दो वेव बनाता हूं, ये देखो, ये जो रेड और ब्लू दो वेव्स बनाएंगे, आप देख सकते हैं दोनों वेव्स का वेवलेंथ भी डिफरेंट है, इनका सब कुछ ही डिफरेंट है। सही है। अब अगर मैं आपको बोलूं ना यार एक काम करो इन दो वेव्स का फेज डिफरेंस, आप खुद बोलेंगे कि सर इसका फेज डिफरेंस कैसे निकाल के दें। आप ये तो देखें, जैसे शुरू में आप देखोगे ना तो दोनों जीरो पर है, दोनों साथ साथ स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऐसा लगेगा शुरू में तो बिल्कुल इन फेज है। बट देखो अभी ये अपने पीक पर पहुंच चुका है, बट इस पॉइंट पर ये अभी अपने जब ग्रीन वाली वेव ने नीचे आना शुरू कर दिया तो क्या ब्लू वाली वेव ने भी नीचे आना शुरू कर दिया? ऐसा नहीं है, अभी तो अपना डिस्प्लेसमेंट वो और बढ़ाएगा। सही है ना। तो एकदम से एक पॉइंट पे जाके ना आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल ही 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हुए। लाइक जब 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 ग्रीन वाली वेव का पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर है उस वक्त ब्लू वाले का तो बिल्कुल ही अपने लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पर है। सो हम कहेंगे ये जो दो वेव्स है ना ये दो कोहेरेंट वेव्स हैं, लाइक दे डू नॉट हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। आप समझ रहे हो, ये ग्रीन वाला अपने पीक पर जा रहा है, ब्लू वाला भी जा रहा है, बट जब ग्रीन के वापसी का टाइम आया तो ब्लू ने बोला नहीं यार यू डिजर्व बेटर, वो बोल के और ऊपर चला गया। आप समझ रहे हो। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि लाइक ब्लू वाला ना वापस नहीं आ रहा है, लाइक बिल्कुल साथ साथ ऑसिलेट नहीं कर रहे हैं, साथ ऊपर साथ नीचे नहीं कर रहे, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी टू वेव्स टू बी कोहेरेंट ना। अगर उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी, अगर उनका टाइम पीरियड डिफरेंट होगा, ऐसी बात है वो अपनी ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा होगा, दूसरा अपनी ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा होगा, कोहेरेंसी पॉसिबल ही उस वक्त जब दो वेव्स ना सिमिलर सोर्स से आ रही है, यानी दोनों सोर्सेस की वाइब्रेशन बिल्कुल एक जैसी हो, उनका टाइम पीरियड बिल्कुल ऐसा एक ही जैसा, उनकी नेचर बिल्कुल एक जैसी, तभी आप उनमें कोहेरेंसी ला सकते हैं। और ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने जो पीछे रूल पढ़ा है ना कि लाइक अगर पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, और अगर पार्ट डिफरेंस 0 0.5 1.5 2.5 लैम्डा हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। दिस इज ऑब्वियसली एप्लीकेबल ऑन अ कंडीशन इफ द टू वेव्स आर कोहेरेंट। इफ द टू वेव्स आर नॉट कोहेरेंट, लाइक यानी अगर उनकी वेवलेंथ डिफरेंट है तो आप पार्ट डिफरेंस निकालोगे किसकी वेवलेंथ की फॉर्म में। लाइक व्हेन आई से पार्ट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो दोनों की वेवलेंथ सेम होगी तभी तो पार्ट डिफरेंस निकलेगा, लाइक इन टर्म्स ऑफ लैम्डा इज 1 लैम्डा 2 लैम्डा और 2.5 लैम्डा। अच्छा अब पहले तो मुझे सारे लोग कंफर्म कर दें इफ यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय अ कोहेरेंट वेव। हाँ अभी उसी पे आ रहे हैं, एंड व्हाट इज मेंट बाय टू वेव्स दैट आर नॉट कोहेरेंट। सही है। अच्छा अब अच्छा ये जो पॉइंट है ना कि बोथ वेव्स मस्ट स्टार्ट इन फेज, इस पे इसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा कि आखिर इसका क्या मतलब है। अभी अभी ऑल आई वांट यू टू रिमेंबर इज कि भाई अगर दो सोर्स ऑफ वेव्स इन फेज हो, यानी जब वो स्टार्ट इन फेज होते हैं, तो you should remember the condition of interferences के 0 1 lambda 2 lambda 3 lambda पे constructive interference होगा, 0.5 1.5 2.5 lambda पे destructive interference होगा। and I would want to discuss more examples with this case, okay। फिर I would want कि जब आप बिल्कुल पक्के हो चुके हो ना तो फिर मैं आपके आगे वो चेंजेस लाना शुरू करूँ कि आखिर इसकी अगर कोर कंडीशन ही चेंज हो जाए तो किस तरह से ये सारे इंटरफेरेंस की कंडीशन चेंज हो जाती है। बट I really want you guys to go through a situation which is very frequently asked in past papers, like अगर for example मेरे पास let's say दो source of waves हैं, दो dippers हैं, continuous dippers हैं जो बिल्कुल इन फेज ऑसिलेट कर रहे हैं, एक साथ टप 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 पानी में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे वाटर में लेट्स से सर्कुलर वेव प्रोड्यूस हो रही है। एंड ऑब्वियसली जब ये सर्कुलर वेव्स जाके डिफरेंट पॉइंट्स पर एक दूसरे से मिल लेंगे
So you're going to expect interferences, and you're going to expect constructive interference at some point, and you're going to expect destructive interference at some point. जाहिर एग्जाम में इस तरह की कलरफुल ड्राइंग तो नहीं आती। एग्जाम में वो क्या करते हैं, वो चुप से आपको ना वेव फ्रंट बना के दे देते हैं इस तरह। वो भी दोनों ही ब्लैक कलर से ही बनाते हैं बिकॉज़ पेपर ही ब्लैक एंड व्हाइट होता है। बट यहाँ पे मैंने आपके सामने ना दो सोर्सेस बनाए। ओके, यू कैन सी एक सोर्स x नाम दे देते हैं, एक का सोर्स y नाम दे देते हैं। ठीक है, द सोर्स x इज प्रोड्यूसिंग सर्कुलर वेव्स which is represented by a red colored wave front, whereas source y is also producing circular waves, which is represented by these blue colored circular waves. And these two waves meet at multiple points. So what examiners do is they mark different points. For example, you can see here point A and point B is marked. Okay, and we have to suggest with explanation whether we expect constructive interference at point A or destructive interference at point A. Okay. अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। लाइक अगर ये हो कि मुझे सिर्फ ये बताना है कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव है, वो तो मैं देख के बता सकता हूँ। बट एग्जाम में ना हमेशा लिखा हुआ होता है स्टेट एंड एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन भी पूरा लिखा हुआ होता है इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। सो एनी एक्सप्लेनेशन अदर देन इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस ऑब्वियसली विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। हाँ, एज फार एज सजेस्टिंग के पॉइंट ए पर कंस्ट्रक्टिव होगा डिस्ट्रक्टिव होगा, मैं आपको भी बता दूंगा। जब हमने वेव फ्रंट बनाना सीखा था तो मैंने आपसे क्या कहा था कि we are used to of making wave fronts by joining all the crust. Okay, so this is the crust of x, this is the crust of x, this is also the crust of x. These are not only wave fronts, rather these lines are also representing crust. Okay, do you remember? We all remember this. For the blue wala, this is crust, 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 crust. So at all points where you see these two wave fronts directly meeting each other, these are the points जहाँ पे दोनों waves के ना crust आपस में मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? crust। और जब भी दो waves का crust आपस में मिलता है, जैसे हम कहते हैं crust से crust मिले या trough से trough मिले, उस वक्त जो इंटरफेरेंस एक्सपेक्ट करते हैं वो कौन सी इंटरफेरेंस होती है? वो होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आपको बिल्कुल ही, जिसको हम जुगाड़ू तरीका नहीं कहते हैं, बिल्कुल देसी लॉजिक, कि भाई यार कोई आज मुझसे बोल दे यार छोड़ो ना फिजिक्स, वैसी किसी चलते फिरते 5 क्लास के बच्चे को बताना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है, तो बिल्कुल ही सस्ती एक्सप्लेनेशन क्या होगी, यार देखो इनका क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इनका ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है ना इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अच्छा, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों हुआ? क्योंकि यार देखो इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ मिल रहा है ना, इसलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। यू नो, लाइक ये एक ऐसी एक्सप्लेनेशन है दैट यू शुड नेवर राइट इन एग्जाम, बट यू कैन ऑलवेज रिमेंबर, यू नो, फॉर जस्ट टू सेव टाइम, यू नो। तो अगर सिर्फ ये बताना है कि इन दोनों वेज में कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव हो, तो मैं देख के बता सकता हूँ कि दिस इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ऐसे ही बताऊंगा ना कि आई सी अ क्रस्ट एंड एट द सेम टाइम आई सी दैट द ट्रफ हियर, तो ऑब्वियसली इनका इंटरफेरेंस क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो बिल्कुल वैसे अगर मुझे इस सिचुएशन में सिर्फ ये बताना है, यू नो, कि पॉइंट ए पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आई वुड कॉन्फिडेंटली से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बिकॉज़ एट ए आपके पास ब्लू वाली वेव का भी क्रस्ट मिल रहा है और रेड वाली वेव का भी क्या मिल रहा है? क्रस्ट मिल रहा है। ओके, बट अच्छा, आमतौर पर पता नहीं होता, बट लेट्स से अगर आपने वेव फ्रंट ट्रफ को मार्क करके बनाया तब भी दोनों का ट्रफ मिल रहा है, तो ट्रफ से ट्रफ और क्रस्ट से क्रस्ट जब भी मिलेगा तो इंटरफेरेंस इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टिव। बट यूजुअली द यूजुअल प्रैक्टिस इज कि यू मार्क ऑल द क्रस्ट, यू नो, to represent a wave front, but still I'm gonna go with the genuine method. अगर मैं point A की बात करूं तो अभी तो like it's just a wild guess, okay, कि I'm gonna have a constructive interference, yeah. हाँ, actually ये वो उसके क्रस्ट है। okay, no I'll explain you अभी। नो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ दिस इज जस्ट अ गेस, अगर मैं, लेकिन अगर उसका ट्रफ होगा तो उसका भी ट्रफ ही होगा। हाँ ठीक है, बट अभी इसकी बहुत बेहतर एक्सप्लेनेशन है मैं आपको देने वाला हूँ, वो क्या जरा देखिएगा। भाई हमने एक बात पढ़ी थी कि दो वेव फ्रंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू 1 लैम्डा। ओके, सो दिस इज 1 लैम्डा, दिस इज 1 लैम्डा,
this is 1 lambda. Okay, so this was your source x and this is the point A ना. x से आने वाली वेव ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना वो है 3 लैम्डा. ओके, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा. समझ रहे हो आप मेरी बात? इसी पॉइंट तक y से आने वाली वेव ने 1 2 3 4 lambda distance travel किया. ऐसा ही. So at point A, wave x has traveled 3 lambda and wave y has traveled 4 lambda. The path difference between the two waves is 1 lambda. पर अभी हम बिल्कुल ये अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों सोर्सेज इन फेज है, तो हमने जो कंडीशन पढ़ी है वो बिल्कुल यहाँ पर एप्लीकेबल है. दैट इज इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज 1 lambda 0 1 lambda 2 lambda 3 lambda 4 lambda, then the interference is going to be a constructive interference. तो अगर एग्जाम में आता है ना state and explain whether at point A you are expecting constructive interference or destructive interference, तो 2 मार्क का ही सवाल है. इसमें सिंपल एक्सप्लेनेशन ये, because the path difference between the two waves coming from x and y is equal to 1 lambda. और अच्छा लिखना तो पूरा लिख दो कि x ने ट्रैवल किया 1 2 क्या कहते हैं 3 lambda, y ने ट्रैवल किया 4 lambda, so the path difference is 1 lambda and for 1 lambda we expect constructive interference. No, I have not calculated any distance. I should know as a matter of fact that between any two consecutive wave fronts, the distance is 1 lambda. Because if this is a crest, na, this is also a crest. Crest से crest का distance कितना होगा? 1 lambda हो जाएगा. Okay? But wait, the fun part begins after this. Let's talk about point B. Okay. Now, if I am assuming this as the crust and this as the crust, then look at these dotted lines. Points right between the two crusts, what do you expect? A trough. Okay, so these are all trough. Okay, and this is again crust. Okay, so right in the middle of two crusts you should expect a trough. अब मुझसे क्या कहा जा रहा है कि यार पॉइंट बी पे आप बताओ कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है. पॉइंट बी जो है ना रेड के तो बिल्कुल वेव फ्रंट पे बैठा हुआ है. सो रेड का क्रस्ट है, ब्लू वाले का क्या है? ट्रफ. ये ब्लू का क्रस्ट है, ये भी ब्लू का क्रस्ट है, तो इसके बीच में ब्लू का क्या है? ट्रफ है. तो रेड वाले का क्रस्ट ब्लू वाले के ट्रफ से मिलेगा. द इंटरफेरेंस शुड बी a destructive interference. Okay, but again I should not be very much confident on my answer based on crust and trough. Rather I should be looking for my answer based on path differences. अगर destructive interference हो रहा है पार्ट बी पर, तो लेट्स सी कि इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस क्या हो रहा है. ठीक है, तो पॉइंट बी पर x ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज 1 2 and 3 lambda. A distance traveled by x is 3 lambda. अच्छा, y ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज 1 2 and a half. तो ये कितना हो गया? 2.5 lambda. Are you all with me? It's very easy. Path difference is the difference of the distance traveled by the two waves. So difference of 3 and 2.5 is 0.5 lambda, and we have already discussed that for any two waves, if the path difference is 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, which is in general n plus half lambda, where n is a whole number, then the interference should be a destructive interference. जी भाई, सॉरी यार ऑनलाइन वालों के काफी देर से क्वेश्चन नहीं देख पा रहा. अभी दोबारा बता देता हूँ. अच्छा ज़ैनब ज़ैदी, मैं ये दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए ज़ैनब, मुझे आप एक बात बताएं. डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज crust, this is crust, and this is crust? Do you understand this? Like we're just assuming, all the wavefronts as crust. अच्छा ऐसे करते हैं. तो मैं इसलिए ये अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने तुम लोगों को वेव फ्रंट की डेफिनेशन पढ़ाई थी ना, उस वक्त मैंने तुम लोगों को यही कहा था कि लाइक हम सारे क्रस्ट को मिला के जो लाइन बनाते हैं ना, दैट इज अ वेव फ्रंट. याद आ रहा है? उस अजम्पशन पे मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ. जैनब, या जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना कि भाई ये सारे क्रस्ट को मिला दो.
तो ऑटोमेटिकली आपकी वेव फ्रंट बन जाएगी। ऑब्वियसली ये कोई बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, बट जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड और विजुअलाइज कि अगर आप सारे क्रस्ट को मिला के एक लाइन बना ले, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर ले, तो विल एंड अप विद अ वेव फ्रंट। ओके, सो दिस इज जस्ट एन assumption, but definitely a powerful assumption। ठीक है, तो इसका मतलब दो वेव फ्रंट के बिल्कुल जो बीच का पॉइंट होगा वो ट्रफ होगा। ये बात समझ आती है आपको ज़ैनब? ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि पॉइंट बी पर रेड वाले का क्रस्ट है बट ब्लू वाले का ट्रफ है, and just by simple rule of thumb, when the crust meets the trough, the interference is a destructive interference। Zainab, ये बी का क्रस्ट, ये बी का क्रस्ट, तो ये बीच में क्या होगा? ब्लू वाले का वो वाई का ट्रफ आएगा ना इस पॉइंट पर। ठीक है, और ये पाथ डिफरेंस की फॉर्म में आपको समझ आ गया, 1 लैम्डा 2 लैम्डा और ये आधा लैम्डा। सो वाई ने ट्रेवल किया 2.5 लैम्डा और एक्स ने ट्रेवल किया 1 2 3 लैम्डा। द पाथ डिफरेंस इज 0.5 लैम्डा एंड द इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सॉरी, आप कुछ पूछ रहे हैं? सर मुझे कैलकुलेशन नहीं समझ आई। एक मिनट, हाँ, नो नो नो, ए तक 1 2 3, दैट्स 3 लैम्डा। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय x। अगर आप पॉइंट ए पे निकालो ना, आप पॉइंट ए तक निकालो। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय y, पॉइंट ए तक 1 2 3 4, दैट्स 4 लैम्डा। सॉरी, हाँ हाँ, ये ए के लिए ही कर रहा हूँ ये सारी वर्किंग। सही, ये सारी वर्किंग पॉइंट ए के लिए और ये सारी वर्किंग पॉइंट बी के लिए। ठीक है, तो अगर पॉइंट ए की बात करें तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। ये डिस्टेंस इज 1 लैम्डा। ओके, सो पॉइंट ए तक आने में x ने 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा का डिस्टेंस ट्रेवल किया और y ने 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा का डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो उनका पाथ डिफरेंस हो गया, डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस 4 - 3 which is 1 lambda, and for 1 lambda we get a constructive interference। अभी किसी ने ऑनलाइन बोला था कि कैलकुलेशन समझ में नहीं आई। नाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? जी सर। Sure. Similarly, at point, this is point B, okay, and all of this calculation is about point B. So for point B, wave x has traveled 1 2 3 lambda, wave y has traveled 1 2.5 lambda। Okay, so 3 and 2.5, difference is 0.5। okay, to understand it better I need to pick up 2 more points। okay, now but before I explain, now this, look at this point, this is, let's say, point C। okay, अभी कोई मुझे जवाब ना दे, पूरा 1 मिनट लो, तसल्ली से देखो और मुझे बताओ in terms of path difference whether it is going to be constructive or destructive, और path difference है कितना at point C। पहले 1 मिनट लो, okay, everyone can absorb। जीरो होता है ना दो वेव फ्रंट्स के बीच का, क्योंकि दोनों क्रस्ट होते हैं, इन फेज होते हैं। सर 2 लैम्डा सबका ही आ रहा है, पाथ डिफरेंस इज 2 लैम्डा एंड इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव। ठीक है भाई, देखो अगेन on our assumption that all of these wave fronts are representing crust, so this is crust of blue, this is crust of blue wali wave, so this is the trough of blue wali wave। similarly, if this is crust of red wali wave, this is crust of red wali wave, so this is trough of red wali wave। तो दोनों का ही ट्रफ मिल रहा है ना, तो अगर ट्रफ से ट्रफ मिलेगा तो इंटरफेरेंस क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा। but like we are going to talk in terms of path difference, so for wave x the distance traveled by x is 1.5। okay, याद है,
And for y, this is going to be 1, 2, 3, and then 3.5. So the distance traveled by x is 1.5 lambda, 1.5. Distance traveled by y is 3.5 lambda, 1, 2, 3.5. The part difference is 3.5 minus 1.5, which is going to be 2 lambda. So for a path difference of 0, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda, what we expect is a constructive interference. हाँ भाई समझ आ रहा है सब? Can everyone listening to us online please confirm if I'm Yes, able to sir. make myself clear to all of you? One more. Okay. चलो भाई अब आ जाते हैं. Look at this point, point D. जल्दी बताओ. Constructive या destructive? It has to be destructive, okay? Even without any calculation of part difference, you can tell because at this point D, this is the crust of red, but this is the trough of blue वाली wave, okay? ये आपकी blue वाली wave है, ये आपकी blue वाली wave front है, तो इनके बीच यानी अगर ये दोनों crust है तो center में trough होगा ना, तो blue वाले का trough और red वाले का crust मिलता है. But if you even if you don't want to go by this desi logic, you can always find out the distance traveled by x, which is 1.5 lambda. Okay, Oh, 1.5. bucket. Sorry. So y is 1.5 lambda, 1.5, and x is 1, 2, 3, 4 lambda. Okay. What is the path difference? आप इनको minus कर दो, which is going to be equal to 2.5 lambda. And for a path difference of 2.5 lambda, what do you expect is a destructive interference. ठीक है? यार किसी ने ऑनलाइन अभी कंस्ट्रक्टिव बोला था बेटा, आपको समझ आया? यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा. डिलीट कर दिया गलती से. Okay, so everyone understands this? अच्छा, एक और मैंने एक दफा कहीं देखा था पास्ट पेपर में, जब उन्होंने बोला था कि यार लाइन से ना वो पॉइंट्स मार्क कर दो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे. ठीक है ना? तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव, दिस इज कंस्ट्रक्टिव, these are all points where you should expect constructive interference. समझ रहे हो आप मेरी बात? It's because के भाई like क्रस्ट से क्रस्ट, ट्रफ से ट्रफ, क्रस्ट से क्रस्ट, ट्रफ से ट्रफ, फिर वो सारे पॉइंट मार्क कर दो जहाँ पे आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्सपेक्ट करोगे, तो डिस्ट्रक्टिव, 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 डिस्ट्रक्टिव. सो दीज आर ऑल द पॉइंट जहाँ पे आप कंटिन्यूअसली क्या एक्सपेक्ट करोगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे शुड एक्सपेक्ट द ग्रेटेस्ट एम्पलीट्यूड, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे. अच्छा, एक और चीज, अभी जब मैं पास्ट पेपर्स कराऊंगा ना तब भी आई विल बी डिस्कसिंग दैट, बट what the examiners do is like they will write state what will be observed at point A, okay, or state what will be observed at point B. अब आप मासूम बच्चे ये समझोगे ना कि भाई वो ये पूछना चाह रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, आप जल्दी से पार्ट डिफरेंस निकाल के लिख दोगे भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड उसको जरा से भी रहम नहीं आएगी, वो आपका एक मार्क काट लेगा. वो कह रहा नहीं, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, मैंने आपसे पूछा क्या ऑब्जर्व होगा. ऑब्जर्व ये होगा कि वहां पे जो पार्टिकल होगा वो स्टेशनरी हो जाएगा, बिकॉज़ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, तो वो लाइक अपने डिस्प्लेसमेंट से हिलेगा ही नहीं, अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस ही नहीं करेगा. और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो यू शुड बी राइटिंग कि भाई वो हाई एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा होगा, व्हिच इज वेरी नॉनसेंस टू मी. लाइक किसी को क्वेश्चन में ट्रिक करने से आपको क्या मिलेगा? लाइक आपको ये चेक करना है ना कि सामने वाले का कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं तो उससे इंसानों की तरह सीधे पूछ लोगे भाई पार्टिकल स्टैटिक होगा या वो, और फिर उससे मार्क काटना है. जी बेटा बोले. इसमें ये मुझे पहले समझ आ गया था, अब नहीं आ रहा. क्या समझ में आ उसमें रहा पूछो.
डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव की जो आपने सेंटर में बताएं कि कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, वो वाला मिक्स हो गया। किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस? नहीं, पार्ट डिफरेंस निकालना आ गया, बट ये जो आपने ब्राउन पॉइंट्स बनाए हुए हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी दोबारा समझा देता हूँ। देखिए लाइक, देखिए जिस पॉइंट पर दोनों वेव फ्रंट मिल रही है ना, वो तो कंस्ट्रक्टिव है ही, इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि दोनों के लाइक वेव यस फ्रंट सर, मिलने ये का सही मतलब है, तो ये क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, देखो फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू का क्रस्ट है और ये ब्लू का क्रस्ट है, तो इसके बीच में क्या होगा? ब्लू वाले का ट्रफ। टफ मानती हैं आप? होगा। सही। अच्छा, ये रेड वाले का क्रस्ट है, ये रेड वाले का क्रस्ट है, तो इसके बीच में क्या होगा? टफ। रेड वाले का ट्रफ। तो एक्चुअली ये वो पॉइंट है जहां दोनों वेव्स के ट्रफ मिल रहे हैं। तो जब भी क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ मिलते हैं ना, तो यू शुड एक्सपेक्ट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सही, ओके सर। और वो डिस्ट्रक्टिव भी बता दें। अब इधर आ जाओ। इस पॉइंट पर रेड वाले का क्रस्ट है या ट्रफ है? सर क्रस्ट है। क्रस्ट है, बट ब्लू वाले का, क्रस्ट ये है। ब्लू के दो क्रस्ट, ब्लू के ट्रफ है ना, तो इस पॉइंट पे आपको क्या हाँ मिला? डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, इस हाँ। पॉइंट पर ब्लू का तो क्रस्ट है, रेड का टफ है। ट्रफ है। दो क्रस्ट है ना, इस बीच में ट्रफ आ जाएगा। इस पॉइंट पर रेड का क्रस्ट है तो ब्लू का ट्रफ है, इस हम्म। पॉइंट पर ब्लू का क्रस्ट है तो रेड का ट्रफ है। सो एट ऑल दीज पॉइंट्स यू शुड बी एक्सपेक्टिंग अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, क्योंकि वो पूरे में स्प्रेड हुई है ना वेव्स, तो कहीं कहीं पे पार्ट डिफरेंस कुछ होगा, कहीं पे कुछ होगा। सो शुड बी एक्सपेक्टिंग बोथ। क्या आप सब यहाँ तक मेरे साथ हैं? अच्छा, अब ये एक चीज है जो कि हम अभी बात करेंगे जिसपे, और फिर हम दोबारा बात करेंगे इसके ऊपर अगली क्लास में, बिकॉज आज मैं समझाऊंगा और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे दोबारा पूछूंगा। देखिए, अभी हमने जो आज की पूरी क्लास जिन बेसिस पे प्रैक्टिस की है, वो इस बेस पे की कि हमने याद किया हुआ था कि भाई whenever path difference is n lambda, the interference is constructive, and whenever path difference is n plus half lambda, the interference is going to be destructive, where n is a whole number. Okay, where n is a whole number. सही है। और मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि इस कंडीशन के एप्लीकेबल होने की भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि वो दो सोर्सेस जो कि कोहेरेंट वेव्स प्रोड्यूस कर रही हैं, these two sources must be oscillating in phase with each other. अब ना थोड़ा सा हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सही है। इसको समझने के लिए मुझे अब थोड़ा सा, ये मैं आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे सारे ड्राइव पे अपलोडेड, उसके लिए आपको थोड़ा सा, उसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी। देखिए, लेट्स से दो वेव की सोर्सेज, ठीक है, वन ऑन माय लेफ्ट हैंड एंड वन ऑन द राइट, ओके, और ये दोनों सोर्सेज ना ऑसिलेट, and as a result of this oscillation wave produce, यहाँ से भी wave produce हो रही है, and there is any point where that you pick up where you want to find whether these two waves, when they will meet, the interference is going to be constructive or destructive. Okay, अब पहली बात तो, चाहे आप जब भी आप इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करना चाहते हैं, सोर्सेस का कोहेरेंट होना जरूरी, मतलब दोनों सोर्सेस बिल्कुल सिमिलर वेव प्रोड्यूस करें, यानी ऐसी वेव जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, यानी उनकी वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड सब कांस्टेंट। और उसके साथ साथ एक और चीज बड़ी, वो ये कि जो दो सोर्सेज है ना, वो ऑसिलेट इन फेज कर रहे हैं या आउट ऑफ फेज। देखिए, दो सोर्सेज है, लेट्स से ऑसिलेशन ये कि मीन से एक्सट्रीम पे जाएंगे, फिर मीन पे जाएंगे, फिर लोअर एक्सट्रीम पे जाएंगे, फिर वापस मीन पे
इसका भी बिल्कुल वही पैटर्न ऑफ ऑसिलेशन, बट देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी कि ये दोनों इन फेज हो, यानी जब दो सोर्सेस ऑसिलेट कर रहे हैं तो वो ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, so like they are oscillating in step with each other. So these two waves, these two sources are in phase. अच्छा सोर्स इन फेज है ना, बट इनसे जो वेव प्रोड्यूस होंगी ना वो जरूरी नहीं है कि जब मिले तो वो इन फेज में मिले, वो इन फेज में मिल सकती है, वो आउट ऑफ फेज में मिल सकती है। अगर दो सोर्सेस बिल्कुल इन फेज ऑसिलेट कर रहे हैं और ये दोनों एक पर्टिकुलर वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये वेव किसी एक पॉइंट पे जाके मिलती है, तब ये कंडीशन है कि अगर पाथ डिफरेंस 0 है, 1 लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, तो इनका जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा, यानी सोर्सेज इन फेज थी और वेव्स भी इन फेज ही मिले। अगर दो सोर्सेज बिल्कुल इन फेज ऑसिलेट कर रही है और इनसे निकलने वाली वेव्स जब मिलती है तो इस तरह मिलती है कि उनका पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा है, तो वो मिलेंगे बिल्कुल 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। We would call that interference as a destructive interference. इसका मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सोर्सेज इन फेज है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि वेव्स जो निकल रही हैं वो मिलेंगी भी हमेशा इन फेज। दो सोर्सेज जब बिल्कुल 0 डिग्री का फेज डिफरेंस लेके बैठे हैं, सोर्स ऑफ वेव यू नो लाइक बिल्कुल साथ साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, तो जो उससे निकलने वाली वेव है ना जो आपस में मिलेंगी, जरूरी नहीं है कि वो भी इन फेज है, वो इन फेज में मिल सकती है, वो आउट ऑफ फेज में मिल सकती है। When I say in phase, I mean 0 degree का phase. When I say out of phase, I mean exactly out of phase, 180 degree out of phase. तो हमने उसकी कंडीशन पिछली क्लास में याद किया कि अगर if the path difference between two waves is 0, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, interference is constructive. If path difference is 0.5, 1.5, 2.5 lambda, then the interference is going to be destructive. But इस कंडीशन की भी एक कंडीशन क्या है कि जो कोहेरेंट सोर्सेज है वो कैसे ऑसिलेट करनी चाहिए, they should be oscillating in phase with each other. क्वेश्चन में ये हमेशा क्लियर लिखा होगा कि सोर्सेज जो है ना वो इन फेज ऑसिलेट कर रही है या आउट ऑफ फेज ऑसिलेट, सही। अभी जो हमने सर्कुलर वेव वाला पढ़ा था वो इस असम्पशन पे पढ़ा था कि सोर्सेज इन फेज ऑसिलेट, बट दो बिल्कुल कोहेरेंट सोर्स ऑफ वेव्स बिल्कुल एक जैसी ऑसिलेशन है, लेकिन उनकी सोर्स की ऑसिलेशन है ना 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, यानी जब ये वाला सोर्स इधर जाता है तो ये, जब ये इधर जाता है तो ये इधर जाता है, फिर ये ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे जाता है। So they both are performing the same vibration, but they are not performing in step with each other. They are exactly 180 degree out of phase. अच्छा, अब अगर दो वेव्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है ना, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि उनका इंटरफेरेंस भी हमेशा, उनसे निकलने वाली वेव्स का इंटरफेरेंस भी हमेशा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। अगेन इससे जो दो वेव्स निकलेंगी ना उनकी मुलाकात इन फेज भी हो सकती है, आउट ऑफ फेज भी। यहां पे कंडीशन बिल्कुल उल्टी है। अगर आपकी दो सोर्स ऑफ वेव बिल्कुल ही 180 डिग्री आउट ऑफ, ठीक है, दोनों वेव एक जैसे प्रोड्यूस कर रही हैं, कोहेरेंट वेव्स हैं, बट स्टार्ट ही उल्टा हो गया, जब इसने अपना क्रस्ट पैदा किया तो इसने अपना ट्रफ पैदा किया, यू नो, एंड नाउ दीस टू वेव्स आर गोइंग एंड दे मीट एट सम पॉइंट where the path difference, अब इन इस केस में जबकि सोर्सेज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज थी और उनकी मुलाकात हो रही थी, तो अगेन वेव्स इन फेज में हो सकते हैं, आउट ऑफ फेज में। अगर दो वेव्स का पाथ डिफरेंस अब की बार 0 है, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा है, तो अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्या होगा, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर इनका पाथ डिफरेंस 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 लैम्डा है, तो इनका इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो पास्ट पेपर्स में ना आप कुछ क्वेश्चन देखिए जिसमें वो आपसे कहेंगे भाई आप बताओ इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा।
आप देखेंगे 2 वेव्स है, आप उन दोनों वेव्स का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर आप माइनस करके पाथ डिफरेंस निकालेंगे, वेव लेंथ से डिवाइड करके आप पाथ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकालिए। लेट्स से पाथ डिफरेंस आया 2.5 लैम्डा। अब मार्किंग स्कीम में देखेंगे कि आया पाथ डिफरेंस तो यही लिखा हुआ 2.5 लैम्डा, लेकिन कंक्लूजन में लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एकदम से बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर ने तो कहा था कि 2.5 लैम्डा पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सर ने कहा था 2.5 लैम्डा पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ऑन अ कंडीशन इफ द सोर्सेस आर ऑसिलेटिंग इन फेज विद ईच अदर। आप उस क्वेश्चन को जब गौर से देखेंगे तो शुरू में कहीं लिखा हुआ होगा कि ये जो दो सोर्स ऑफ वेव्स हैं ये एग्जैक्टली 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ऑसिलेट कर। इन सच अ सिचुएशन पूरी कंडीशन ही उल्टी हो जाती है। फिर 0.5 1.5 2.5 3.5 लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाएगा और 0 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाएगा। नहीं समझ आ रही है बात? नहीं आगे आइए समझ में बात है। तो जो मैंने आपको समझाया है ना वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, आगे की सारी डिस्कशन इसी बेसिस पे कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अभी n लैम्डा था, अभी इसी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n प्लस हाफ लैम्डा हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी सोर्सेज ही आउट ऑफ फेज। तो सारी कंडीशन क्या हो जाएगी? बोलो ना, क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। सॉरी तुम कुछ पूछ रहे थे, मैं पूरा रूल उल्टा हो जाएगा। हाँ भाई, चैट का क्या सीन है भाई? सर अच्छे लग रहे हैं आज। अच्छा बस ये बताओ गाइस, am I able to make myself clear to all of you? Can someone please? कल की क्लास जो आप लोगों के लिए ऑनलाइन होगी और उनके लिए फिजिकल होगी, हमारी क्लास हफ्ते में 4 दिन होती है, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, उनसे ज्यादा पूछूंगा, किसी ऑनलाइन से ही पूछ सकता हूँ। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, कॉलेज में सब कहते हैं समझ आ, जब मैं पूछता हूँ ना तो इवन इफ दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ना, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। एंड व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि देखिए जो आपका वेव्स का पेपर है ना वो पूरा थ्योरेटिकल पेपर है, यानी वो कैलकुलेशन है पर बहुत लिमिटेड है। एक्सप्लेनेशन से 2-2 मार्क की 3-3 मार्क की, और उसमें एग्जामिनर आपके दिल का हाल नहीं जानता कि आपको कितना कॉन्सेप्ट आता है। व्हाट इज रिटन इन योर आंसर स्क्रिप्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट यू बिलीव। अब उसमें ना कभी कभी आप जरा सा कोई कीवर्ड मिस करते हो ना, ऑल ऑफ अ सडन जो है ना उसका मीनिंग ही कुछ और हो जाता है। और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स में पर्टिकुलरली जब मैं बच्चों से सुनता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार आप बिलीव करो, आप खुद एक बार सोचो आप बोल रहे क्या हो, तो आपको रियलाइज होगा कि यार लाइक आप जो कहना चाह रहे हो ना वो आप कहीं नहीं हो। तो उस पर फिर वही होता है कि ऐसा पेपर बहुत आसान था, बहुत अच्छा हुआ, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मार्क्स खराब आया। इसकी वजह ये कि भाई तुम्हें आता था बट तुमने लिखा थोड़ी है सही, तुम्हें तो उसमें मार्क्स मिलेंगे ना जो आपने लिखा है, सही है। तो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस की टर्म्स, इट्स वेरी वेरी एडवाइजेबल। ये सारे नोट्स वेव्स के पर्टिकुलरली आप प्रॉपर कॉपी करें। जब आप कॉपी करते हैं ना तो दिमाग चलना शुरू होता है, यू स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, एक सर ने ये चीज क्या बताई थी। तो देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी कि आपके दिमाग में वो कीवर्ड्स बैठेंगे। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास एंड अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।